So before starting, before starting the session, participants are requested to keep their audios and videos off. If you have any questions, then you can post them in the chat box, which will be taken at the end of the session. As Dr. B.R. Ambedkar quoted, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. On this note, I, Khushi Johar, the core member of NSS Shivaji College, welcomes you all in today's session on the topic Know the Constitution, the Preamble, hosted by National Service Scheme NSS Shivaji College. We are glad that all of you accepted our invitation to be a part of this event. I would like to extend my regards to our principal, Professor Shiv Kumar Sahadev, NSS convener, Professor Mridula Buddharaja ma'am, and all the faculty members for their constant support and guidance. We at Shivaji College, a premier institute of the University of Delhi, accredited with NAC A grade, believes in selfless community service and making a significant contribution to the society. At NSS, students and faculty work together to lend a helping hand to the community. The motto of NSS, not me but you, reflects the essence of democratic living and upholds the need for the selfless service. Now, I would like to welcome Ms. Ela Bhushan ma'am with a virtual bouquet as a token of gratitude. Thank you so I much. Thank you, ma'am. I request our faculty member, Dr. Vishnu Satpate sir, to introduce with the speaker of the day. Over to you, sir. Thank you very much, Khushi. On behalf of Mridula ma'am, the convener, and the entire NSS team, I welcome every one of you in the virtual audience to this celebration of Constitution Day. I would like to take this opportunity to thank our principal sir, who has always been very supportive in all our activities. So thank you very much, sir. And today, this important topic, Constitution Day celebration. Constitution Day celebration is basically aimed at, creating a kind of awareness among the people regarding the importance of Constitution in the nation building process. Constitution is a living document reflecting our goals, certain principles, and of course, our dreams to move forward and our philosophy to guide us through. Today, we have amongst us an erudite scholar, a loving human being, probably the best person to speak on such an occasion. And the topic is also very befitting. Know the Constitution, the preamble. It is the preamble actually which contains all these, and it is written in such a poetic manner, in a sing-song manner, probably the best way that it could have been done. So a few words regarding our chief guest. Welcome you, ma'am, to this program. Ela Bhushan Jain, an associate professor, Department of Political Science, Samlal College, Evening. Ma'am has done splendid work in her field of specialization, public administration and corporate social responsibility. She has presented and published many papers on women empowerment and corporate social responsibility in national as well as international journals. Ma'am has also been actively engaged in creating awareness about environmental issues and utility of gardening in these COVID times, which is so contemporarily relevant today, and we can learn, from that. And I have already put it, a loving human being, an empathetic person. Ma'am has done highly commendable work with Khushi Foundation to spread awareness about education in slum areas, and have made personal efforts
to enlighten our villages with quality education. Though I have the temptation to speak on the topic, being a man of political science, but I would not actually stand between you and ma'am, because I am also very eager to listen to ma'am. So without any further delay, I'd like to hand over the virtual mic to ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you, Vishnu sir, for your very kind words. It's a great pleasure and great privilege to be here this afternoon. Actually, Constitution of India is a very comprehensive document, and I feel that we have not done justice with this document. And that being the reason, when I was contacted by Dr. Sarita regarding this webinar, so I immediately said yes to it. So today I'm here to share my little knowledge about Indian Constitution in generic, and especially the preamble, because it is the preamble which is soul of Indian Constitution. So Indian Constitution being a very comprehensive document, I come with a structured framework, I come with a layout, and I will strictly adhere to that layout, because Indian Constitution offers so much that one road can lead us to another road. So I will be, discussing Indian Constitution in brief, and from Indian Constitution, I will be moving to preamble. But before that, because students are here and my approach has always been student centric, so I would like to share something with them. I come with a copy of Indian Constitution. This is Bare Act, and you can have this bilingual also. And when you open this, immediately after the index, you can see the preamble, which has been written beautifully. And see, I will go bilingual because I know that students have English medium also and Hindi medium also. So जब आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो इसके शुरू में ही प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना आपको दिखाई देती है। और मुझे ये लगता है कि हमने अब तक अपने प्रियम्बल और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जस्टिस नहीं की है, अगर हमने उस प्रियम्बल को ही सिर्फ ध्यान से पढ़ा होता, rather than going for 12 schedules and 395 articles. अगर हमने अपने प्रियम्बल को बहुत प्यार से पढ़ा होता तो हम लोगों को हमारे संविधान निर्माताओं का जो विजन था, जो परसेप्शन था, उसकी हमारे पास एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती. So what I have done, I have made a small PowerPoint presentation because long PowerPoint presentations irritate. और इस small PowerPoint presentation में the presentation has been made in English, but I will explain it in Hindi also, so that students are benefited maximum. और इसके साथ साथ हम एक चीज और करने वाले हैं. हम जब इसके प्रियम्बल पे आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो उसको आई विल रीड इट आउट, आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो, लेकिन मैं उसको रीड करूंगी और आप लोग उधर से म्यूट रहेंगे, लेकिन म्यूट रहते हुए आप उस प्रियम्बल को मेरे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब हम बोल के करते हैं तब हम उसको ज्यादा समझते हैं और तब हमारा पर्पस सर्व होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक वेबिनार नहीं है, यह एक एफर्ट है आपके कॉलेज की एनएसएस टीम का, आपके कॉलेज का, कि आप तक आइडिया पहुंचे कि हमारा प्रियम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और क्यों हमें इसे आजादी के अमृत महोत्सव में पढ़ना पड़ रहा है। यानी इतने सालों बाद क्यों हमें किसी डॉक्यूमेंट की इंट्रोडक्शन को, उसके उद्देशिका को, उसके प्रीफेस को, उसके प्रियम्बल को दोबारा से इतने अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है। तो आज हमारा एफर्ट ये रहने वाला है। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स फॉर दैट। See,
See, technology has its own problems. It has advantages also, so it has disadvantages also. This is my layout, a broad layout, like what is Constitution and why Constitution. Moving on to what is preamble, significance of preamble. Then we will read the preamble, we the people of India. And finally, because this program is being conducted by NSS unit of the college, so what is the connectivity between preamble and NSS, or what is the relevance of preamble for NSS? ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है, इसको हमने लैटिन वर्ड से लिया है। और संविधान जो है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो हमारा संविधान है वो एक संग्रह है बेसिक सिद्धांतों का, नजीरों का, जो किसी भी संगठन या सरकार का वैध आधार तैयार करता है। और यह ये बताता है कि ये जो एंटिटी है इसको किस प्रकार से शासित किया जाएगा। तो जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको बताया था, ये पूरा फ्रेमवर्क है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलने वाली है। और इसके अंदर खूबसूरती ये है कि ये ना केवल सरकारी अफसरों को, सरकारी संस्थाओं को शक्तियां देता है, उनकी शक्तियों के ऊपर अंकुश भी लगा कर रखता है। इसलिए संविधान को हम सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड या किसी भी देश की सर्वोच्च विधि कहते हैं। जो हमारे देश का संविधान था उसको हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और वो जो था 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। तो बहुत ब्रीफ में हम लेके चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि फोकस हमारा प्रियम्बल पर है। हम प्रियम्बल पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन प्रियम्बल को जानने से पहले ये जरूरी था कि हम जाने कि हमारा संविधान क्या है। तो संविधान जो है हमारे देश की सर्वोच्च विधि है और संविधान के अनुसार ही किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे देश का साइज और हमारे देश की मल्टीकल्चरल सोसाइटी इसकी मांग रखती थी कि हमारे पास एक लिखित संविधान हो जिसके अंदर सारे राज्य सुरक्षित महसूस करें और जिसके अंदर सब वर्ग और सब संप्रदाय के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये छोटी सी एक स्लाइड आपके लिए तैयार की मैंने, ये बताने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य तौर पर क्या क्या है। देखिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न केवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बता रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर यानी एक संघात्मक व्यवस्था के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि हमारे पास सेंटर पे गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट पे गवर्नमेंट है, हमारे पास लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमने किया, हमने पावर को किसी भी एक जगह पर केंद्रित नहीं करके रखा। इसके साथ साथ हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसमें हम जनता के, हम जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं संसद में, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारी मांगों के अनुसार, हमारे डेविड ईस्टन का अगर हम मॉडल फॉलो करें तो हमारी जरूरतों के अनुसार संसद में कानून बनाते हैं और फिर उनको लागू करवाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, और ऑर्गन्स में हमारे 3 ऑर्गन्स हैं। आप सब लोगों को ये आपके क्लासेस में बताया भी गया होगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो हमारा जो संविधान है उसने न केवल केंद्र की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कंपोजिशन पे, उनकी शक्तियों पे चर्चा की है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यों में भी जो कार्यपालिका का स्वरूप होगा, जो व्यवस्थापिका का स्वरूप होगा, जो जुडिशरी का स्वरूप होगा, उसकी भी चर्चा की है। ठीक है, तो ये तो एक मोटी बात रही कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पर जब हम ये ऊपर वाले सर्कल में आते हैं तो यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देता है, और वो इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के बारे में आज के ही एक लेख में मुंबई हाई कोर्ट के GS पटेल जो वहाँ के जज हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, जिसको मैं आपको अपने लेक्चर के एंड में भी शेयर करूंगी। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे देश को जोड़ने में बहुत
बहुत अहम साबित हुए हैं, जिसमें राज्यों के भी अधिकार और जनता के भी अधिकार ये सब खूबसूरती से गुथे हुए हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें राज्य पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखेगा, जिन्हें राज्य साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की कोशिश करेगा, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा, मैनेजमेंट में लेबर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेगा। तो ये देखिए हमारा जो संविधान है वो कितनी बारीकियों से चीजों को पकड़ कर चला है, इसी वजह से उसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं। अब इसके साथ साथ हमारे संविधान के अंदर उसके अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा उस तक का ब्यौरा है, और उसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस है, उसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा देश है, हमारे अंदर बहुत सारे राज्यों को हम आपस में मिला के चलते हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजंस की भी व्यवस्था इसके अंदर है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारा जो संविधान है वो हमें बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, लेकिन इस संविधान से पहले जो इसकी प्रस्तावना आती है, अगर हम उस पर जाएंगे तब आप ये पाएंगे कि प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं हमारा संविधान हमें उनको देने की कोशिश कर रहा है। यही रीजन था कि पहले मैंने आपके साथ थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, एंड नाउ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन आई विल स्विच ओवर टू प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप कोई भी किताब उठाते हैं और उसको खोल के देखते हैं, कोई स्टोरी भी होती है, कोई नॉवल होता है या कोई टेक्स्ट बुक भी होती है, तो उसके शुरू में प्रीफेस होता है, और ये जो प्रीफेस होता है ये उस पुस्तक को लिखने का वो उद्देश्य बताता है। ठीक है, तो यहाँ प्रियम्बल का मतलब भी उद्देश्य है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है। तो ये सब जो है, ये प्रियम्बल से ये मतलब है कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमें 3 साल लग गए लगभग इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक प्रोविजन पे कितना डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक एक प्रोविजन इसका अस्तित्व में आया। देखिए, जो प्रियम्बल है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो बता रही है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है और ये कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल्स को लेके चल रहा है। इसके साथ साथ ये प्रियम्बल ये भी बता रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहाँ से आ रही है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं हम और आप, वी द पीपल। ये जो हमारी प्रियम्बल है ये 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, उद्देश्य प्रस्ताव मूव किया था, और ये जो हमारी प्रस्तावना है ये काफी हद तक उस उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर आधारित है। हमारी ये जो प्रस्तावना है इसके अंदर आप जब इसे अभी पढ़ेंगे, अभी मैं इसको आपके लिए रीड आउट करूंगी, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगी, बट जब मैं इसको रीड आउट कर रही होंगी आप भी इसको मेरे साथ रीड कर रहे होंगे। तो ये जो प्रस्तावना है ये हमारे देश के लोगों की, हमारे संविधान निर्माता जो हम में से ही एक थे, उन सब की आशाओं की, उन सब की महत्वाकांक्षाओं की, और हमारे राष्ट्र के सम्मुख जो आदर्श थे इसको बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने लाती है। यही वजह है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहते हैं, हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ वर्बेटिम इसकी प्रस्तावना के ऊपर। देखिए, शुरू में ही देखिए, इसको हम 1, 2 और 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कर्सर से आप देखते जाइए कब जो हमारा ये कह रहा है प्रियम्बल, इसको अब आप बहुत ध्यान से आप मेरे साथ रिपीट करेंगे और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring
dignity of the individual, यहाँ dignity of the individual is very important, and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. अब आप देखें कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव, लगभग 70 वर्ड्स के करीब की ये प्रियम्बल, ये उद्देशिका, ये कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसमें जो एक एक कंसेप्ट लिया गया है वो कितनी क्लैरिटी के साथ लिया गया है। यहाँ शुरू में अगर हम देखें, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और इसके सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और सब में भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, हम संविधान सभा में आज के दिन, जो अभी हम पीछे कॉन्स्टिट्यूशन डे मना के अपना चुके हैं, इसको अपनाते हैं, लागू करते हैं और अपने आप को इस संविधान को देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो पहला पार्ट है ये भारत राज्य की नेचर या प्रकृति बता रहा है, और ये जो बाद का पार्ट है ये उन सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स को लेके चल रहा है जो संविधान निर्माता भारत के लोगों को के लिए चाहते थे। सोवरेन, हम संप्रभु हैं, हम अपनी आंतरिक नीति में, हम अपनी बाह्य नीति में किसी से भी निर्देशित नहीं होते। समाजवादी यानी कि राज्य की कुछ नियंत्रण रहेगा संसाधनों के ऊपर। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। हमारे पास कुछ जो हमारे जो उद्यम हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर में हैं, कुछ हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में है। और 1980s के दशक में जब पूरे विश्व में उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण की लहर चली, जिसे हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, उस समय हमारे यहाँ भी थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर राज्य जो है कल्याणकारी गतिविधियां काफी हद तक अपने हाथ में रखे हुए हैं। उसके बाद सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, हमारे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सब धर्मों को एक समान मानता है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ पर शक्ति का स्रोत जनता है, चुनाव होते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ये प्रतिनिधि हमारे बिहाफ में संसद पर जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, और गणतंत्र का मतलब ये कि हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत नहीं है या वो मनोनीत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे राज्य की प्रकृति है, ये हमारा संविधान है, ये हमारे संविधान निर्माता हमारे भारत राज्य को इस तरह से देखना चाहते थे, एक संप्रभु, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक, गणतंत्र। और ऐसा राज्य जिसके अंदर ये आदर्श या ये सिद्धांत हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इंपॉर्टेंट क्यों है। न्याय, कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि जिसमें आप किसी भी आधार पर, धर्म, जाति, कलर, जेंडर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो। समाज में स्थान के हिसाब से भेदभाव नहीं हो। कोई भी व्यक्ति जो योग्य है, जो योग्यता को पूरा करता है, वो वोट डालने के लिए और वो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह से स्वतंत्रता के हम दो मायने ले सकते हैं। एक तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स यानी कि किसी प्रकार के अंकुश का अभाव, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की प्राप्ति। क्योंकि अगर अवसरों की प्राप्ति नहीं होगी तो जो राष्ट्र निर्माता ध्येय अपने साथ लेकर चले थे, नेशन बिल्डिंग का और सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, उसकी प्राप्ति संभव नहीं थी। और इन दोनों के साथ जुड़ा ये तीसरा प्रिंसिपल, इक्वालिटी, जो कहता है कि सबको समान अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए।
ठीक है। अब अगर हमारे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्हें रोकती है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उन सब के लिए है। अगर आप सब ग्रेजुएट हैं, आप योग्यता पूरी करते हैं, तो आप सब अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप अपना तैयारी के साथ एग्जाम्स देकर उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। और अब आप देख भी रहे हैं कि आपका जो जो कॉम्पोजिशन है, मैं जरा सा लीक से हट रही हूँ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, कि आपका जो सिविल सर्विसेज का अब जो कॉम्पोजिशन आ रहा है बहुत ही हेट्रोजेनस कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो जहां पर इक्वलिटी है, लिबर्टी है और जस्टिस है, उस ऑब्वियसली ये सब चीजें होने के साथ साथ फ्रेटर्निटी या भाईचारा या बंधुत्व, ये सब भी अपनी जगह रखेगा। और जब आप एक दूसरे के लिए मन में बंधुत्व या भाईचारा रखते हैं, तो उसका ये मतलब है कि आप सामने वाले की डिग्निटी या सामने वाले की गरिमा को भी मान दे रहे हैं। और जब आप सामने वाले की गरिमा को मान देते हैं, तो उस केस में आपके जो ये छोटे मोटे पैटी इश्यूज हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। और जब बंधुता, भाईचारा, गरिमा ये सब जगह बना के रखे हैं, तो राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता ये भी आपकी बनी रहती है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि आपका जो संविधान की प्रस्तावना है वो कितनी कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है। वो कोई भी आप देखें तो कोई भी प्रिंसिपल उसने छोड़ा ही नहीं है। और अगर आप सही मायने में फ्रेटर्निटी की फीलिंग अपने अंदर लेके चलते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो आपके राइट्स हैं या जो आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा कमी आती है। तो प्रियम्बल ने तो बताया कि हम ऐसा देश, हमारा ये एक परसेप्शन था कि हमें ऐसा देश चाहिए और हम उस देश के लोगों को ये सब देना चाहते हैं। और फिर संविधान के अंदर आए वो सारा तरीका, सारा स्ट्रक्चर, सारा प्रोसेस, जिसके माध्यम से हमने कोशिश की कि हम भारत को के नेशन बिल्डिंग कर सकें, सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सकें और हमारा भारत भी जो है वो विश्व में एक शक्ति और बनकर हमारे सामने आए। और इसके जो तीसरा पार्ट है उसमें ऑब्वियसली ये लिखा है कि इस दिन हम इसको अपनाते हैं और इसको लागू करवा, इसको मतलब वैध रूप से इसको इनेक्ट करते हैं और अपने आप को हम इस संविधान को देते हैं। आप ये पाएंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशंस आपका 1945 में बना है, हम बहुत सारा इम्प्रिंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे यूनाइटेड नेशंस चार्टर का भी देख सकते हैं। तो जो मानव अधिकार का जो मुद्दा रहा, जो अधिकारों का मुद्दा रहा, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सबकी मांग करता है, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के साथ समुदाय और समाज के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि एनएसएस के पटल पर इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या रहा। तो आपने ये नोट किया होगा कि जो प्रियम्बल है वो बार बार बंधुता की, फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की बात करता है और यहाँ पर आके आपका जो प्रियम्बल है वो एनएसएस के साथ कनेक्ट होता है। एनएसएस, आप सब एनएसएस के साथ जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि एनएसएस को हम नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय स्वयं सेवा के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी के बर्थ सेंटिनरी ईयर 1969 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो जिम्मा है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के पास है। एनएसएस का जो बेसिक मोटिव है वो है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हम सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस और राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के लिए एक बिलोंगिंग, ये भावना कि मैं इस देश को बिलोंग करता हूँ, ये पैदा करने की एनएसएस के माध्यम से कोशिश की जाती है। और जब आप ये भावना क्रिएट करते हैं तब आप क्रिएट करते हैं सेल्फलेस यंग लीडर्स भी। और यही वो यंग लीडर्स हैं जिनको आगे चलकर देश को संभालना है, जिनको आगे चलकर ये जिम्मेदारी उठानी है। एनएसएस का मोटो, अभी आप में से जो बच्चे ने शुरू किया उसने भी बोला, नॉट मी बट यू। ठीक है, तो नॉट मी बट यू क्या है?
fraternity, liberty, justice, equality, and ultimately integrity. तो जो NSS है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके माध्यम से हम ये सारी वैल्यूज जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर इम्बाइब कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का पर्पस था वो ये था कि आप में से हर बच्चा प्रियम्बल को बहुत अच्छे से जाने, प्रियम्बल को मेमोराइज करे। कई बारी किन्हीं चीजों को समझने के लिए जरूरी होता है कि आप उनको मेमोराइज करें और उसके बाद आपको एहसास होगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या देता है। And once you know you are thorough with the preamble, you would like to read clause by clause of Indian Constitution, which is considered to be the lengthiest constitution of the world. And this constitution has borrowed from a large number of countries. It has borrowed many good features, like whatever good was available to whatever nation, it has borrowed, obviously suiting to its, adapting to its own circumstances. But then Indian Constitution, I think all of you, whether you are civil services aspirant or not, because you belong to India, आप सबको Indian Constitution की एक बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आज मैंने एक फॉर्चुनेटली वो लेख आज ही पढ़ा, जस्टिस GS पटेल, जिसका जिक्र मैंने आपसे अभी अपने इस उद्बोधन के शुरुआत में किया था, और उन्होंने ये उनके लेख का जो टाइटल है वो है अंडरमाइनिंग आइडिया ऑफ इंडिया। उन्होंने इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज कही है। उन्होंने कहा है कि इंडिया मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। हर चीज का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। यहाँ तक कि उन्होंने 2047 का भारत किस प्रकार होगा उसका भी एक स्केच सामने रखा। हालांकि वो स्केच बहुत पॉजिटिव नोट पे नहीं है, बट व्हाट पॉजिटिव आई कुड गेन आउट फ्रॉम हिज आर्टिकल दैट आई एम शेयरिंग विद यू, दैट ही हैज सेड दैट इंडिया मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन कोई एक चीज है जो सबको जोड़ के रखती है, कोई एक ग्लू है जो सबको जोड़ के रखता है। और इमेजिन वो ग्लू क्या है? वो ग्लू क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states. This sets the stage. इसके साथ साथ इसमें जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट है, जो अधिकार सब राज्यों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, राज्यों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट वर्सेस सेंटर के राइट्स की बात कर रहे हैं, पीपल वर्सेस पीपल के राइट्स की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है भारत के लोगों को आज तक जोड़ के रखी हुई है। और इसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, इंडिया इज नॉट रूल्ड so long as the constitution exists, it never will be. इसका मतलब ये कि आप यहाँ पर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन कर सकते हैं, यहाँ पर राज नहीं कर सकते। एंड बिलीव माय वर्ड्स कि हमारे यहाँ पर चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हमेशा बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ। एंड द रीजन बीइंग दैट वी हैव फेथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी ट्रस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही मैं अपना ये माने यहाँ पर मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करती हूँ। अब आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई इनपुट है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you so much, ma'am, for such an enlightful session. I hope all the students have got enough knowledge about their constitution and, of course, the preamble and the NSS. So now I would like to ask a few questions posted by our audience. Ma'am, the first question is, how can a student study their constitution in order to understand the rights available for him and her? This is a good question, and I'm glad that like my interaction with you is showing some impact to me. See, your constitution is divided into number of chapters.
Right. So there is a chapter by the name of Fundamental Rights, Chapter 3 of the Indian Constitution. बहुत सिंपल है, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आपके दिए हुए हैं और उन राइट्स को आप जो है पढ़ सकते हैं। आप इनिशियली ऐसे भी कर सकते हैं कि बेयर एक्ट उठाने की जगह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की कोई भी सिंपल बुक उठा सकते हैं और इसमें आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल रेमेडीज, ये सारे राइट्स आपको मिलेंगे। Okay, thank you so much, ma'am. The next question is, in the time of reservation in India, how can we say that there is equality in constitution? Okay. See, I've already said, एक मिनट, क्वेश्चन चैट बॉक्स में जा रहा है, just a moment. Ma'am, should I repeat the question? No, let me see the language of the question because I'll go strictly by that. You repeat the just a moment. See, I've already said that our constitution has made some special provisions, okay, for the marginalized classes. So equality cannot be questioned. Equality, these provisions have been made in order to establish some level of equality in the society. And it's a matter of debate now because initially the provisions were for 10 years only, but they have been extended so many times now. Now, after every 10 years, the provision is being extended. So now I think it is the right time that since it has been almost 70 years, and that time, yes, it was required. That time it was required, it was a need of the hour, but now we need to have a positive debate that whether we should continue with the reservation or it's time to say, it's time to quit from reservation. I see one more question. Ma'am, should I say the question? You read out the question. So the next question is, the preamble is so worthy. We all have understood that, and I think students get to know about this through informative sessions like these, but how should we make the adults more acquainted to the same? I mean, this is a very good question. Who has asked this question? Bharti. Thanks, Bharti. और इसका जवाब तुम खुद हो। इसका जवाब तुम खुद ऐसे हो कि हमारी जो तुम लोगों से पहले की जनरेशन गई है, वो कुछ चीजों में उसने लैक किया है, और जो आप लोगों की जनरेशन है वो कुछ चीजों को लेके बहुत बहुत प्रोएक्टिव हो रही है। तो मैंने हमेशा कहा है, अगर मेरे गार्डनिंग पे भी लेक्चर होता है या एनवायरनमेंट पे भी होता है, कि ये मैसेज आपको अपने घर पे लेके जाना है। आप लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी है इस सब के बारे में, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सब चीजें हमारे बड़ों को पता हो या सब चीजें हमको पता हो। सो इट्स लाइक नॉलेज शेयरिंग। तो हमारे घर के बड़े कुछ चीजों के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, और कुछ चीजें जिनकी जानकारी उन्हें नहीं है उसके लिए हमें उन्हें तैयार करना है। Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you. If you have any questions, then you can post it in the chat box. And it's a humble request to all of you कि जो प्रियम्बल आज आपने मेरे साथ शेयर की है, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ये प्रियम्बल होती है, लेकिन हम में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रियम्बल को कभी पढ़ने की भी कोशिश की? We never realized the importance of this beautiful text, है ना? तो जब हम ये जानेंगे ही नहीं कि हमारा देश हमें दे क्या रहा है, तो हम एस्पायर क्या करेंगे या हम डिमांड भी क्या रेज करेंगे? हमारी जो डिमांड्स हैं वही तो पब्लिक पॉलिसी में कन्वर्ट होती है ना। और कोई क्वेरी आप में से किसी की? आप में से किसी कोई इनपुट? So I think, ma'am, the questions are done right now. So thank you so much for answering the questions with so much patience and giving us all a very good information. So now I would like to call our faculty member, Dr. Sarita ma'am, to give the formal vote of thanks. Before that, I would like to thank your college principal and Professor Murdula, your NSS unit, and like very enlightened students like you
like who have taken Thank you so interest in much. preamble, and this has really made me happy and how cherished I feel to be here. So thank you so much, and special thanks to Dr. Sarita for this invitation that she made me part of this program, and I would like to connect with you people in future also. Yeah, Now sure, you can ma'am. go Thank ahead you with so your much. program. So now I would like to invite Dr. Sarita ma'am to give the formal vote of thanks. धन्यवाद खुशी। आज का जो ये जो प्रोग्राम रहा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस वेबिनार में हमारे कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव जी, हमारी जो एनएसएस संयोजिका हैं प्रोफेसर मृदुला बुद्धिराजा मैम जी, उनका जो निरंतर एक प्रोत्साहन रहता है इस तरह की जो प्रोग्राम्स का आयोजन करने का, वो उसके लिए मैम का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारी स्पीकर मैम हैं, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ इतने सारगर्भित और सुंदर वक्तव्य के लिए, और इतने कम समय में मैम ने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे आग्रह को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत सारी चीजों को बहुत करीब से पर्सनली समझने का मौका यहाँ पर मिला, और जैसे मैम ने कहा कि सिर्फ वेबिनार नहीं है बल्कि एक आइडिया है अपने संविधान के उद्देशिका को पढ़ने का, समझने का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संविधान का जो सोल है, जो हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड है, उसको समझने में ये जो वेबिनार है ये हमारे लिए बहुत ही कहूंगी कि हम बहुत लाभान्वित हुए, इससे हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए और हमारी टीचिंग फैकल्टी भी काफी लाभान्वित हुई है। तो मैम, आपने हमारे आग्रह को इतने शॉर्ट नोटिस पर स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम के को कन्वीनर डॉक्टर विष्णु सतपति सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये वेबिनार बहुत सहजता से संपन्न हो पाया। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं वेबिनार से, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, ये सारी मेहनत बच्चों की है। हम तो सिर्फ सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सारा अरेंजमेंट हमारे जो बच्चे करते हैं, और हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो एनएसएस वॉलेंटियर्स हैं, हमारी टेक्निकल टीम जो है एनएसएस की, वो सभी जो है बधाई के पात्र हैं इस सफल आयोजन के लिए। और मैं अंत में मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा मैम से परिचय रहा है, तो बहुत ही सुंदर और सरल व्यक्तित्व की धनी है मैम, और बहुत शुक्रिया मैम इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारा आग्रह स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद सरिता जी, आप सबका भी हार्दिक आभार और धन्यवाद। आशा है आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जी मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Participants are requested to fill the feedback form which has been circulated in the chat box. Certificates will be given to those who will fill the feedback form. So please fill the same.